Okay, students, let us start today's lecture. Before going further, we will discuss what we have discussed on last lecture, that is the equivalence of Moore and Millet machines. And we have discussed the criteria of the equivalence. Then we have discussed how we can convert a given Moore machine into the corresponding Millet machine and reverse of it. That is the conversion of Millet machine to the Moore machine. So this we have discussed on last lecture. Today we'll discuss regular expressions. We'll discuss their properties, formal definition, and design of some simple regular expression for some simple languages. Okay. Informally, we have designed many of the regular expressions with the design of finite automatons. Okay. So we will continue our discussion of designing the regular expressions corresponding to the languages. So first of all, we will discuss regular expression properties. The very first property of the regular expression is that regular expressions are useful for representing certain sets of strings. I'm again saying not all set of strings, certain set of strings in algebraic fashion. Means rather than writing the string, we have to define a language. So language we can define in two ways. Either number one is we can show all the words in that particular language. Like suppose we write it A, triple A, something like this. Okay. So we can show the elements, we can show the words in the language directly, or we can write a expression which is representing the same set of words. Okay, so suppose if L is this, so I can simply write A asterisk will be the language. So I can represent L like L is equal to A asterisk. So what regular expression helps us? It helps us to represent certain sets. Why I am calling certain sets? Because regular expressions can represent only the regular languages. Only the regular languages. Okay. So in algebraic fashion, we can denote it. Now, the regular expression represent the regular sets. Okay. So जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में भी कहा था कि not all sets, but only the sets which are the regular sets, or we can call the regular languages. और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि if any set is represented by a regular expression, that set will be called as the regular set, or the language is called the regular language. I hope it is clear to everyone, class. Yes, sir. Okay. So now we are moving to the formal definition of the regular expression. It is a recursive definition. This definition says that any terminal string or any terminal symbol. What do we mean by terminal symbol? Means the element of sigma. I suppose sigma is alphabet is consisting of suppose two symbols A, B. So all the elements of the sigma means the A in itself will be a regular expression, or simple B in itself will be a regular expression. So any terminal symbol that is the element of sigma will be the regular expression. Epsilon will be a regular expression, and phi will also be a regular expression. So these are called the basic रेगुलर एक्सप्रेशंस. अभी अब जब हमने क्लीन्स थ्योरम डिस्कस की थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे बेसिक वन लेंथ की रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी होंगी. एक तो सारे के सारे सिंबल जो कि अल्फाबेट का पार्ट है, एप्सिलॉन एंड फाई, दीज विल बी अवर basic regular expressions of length 1. Okay, from these expressions we can form further complicated or complex regular expression. So in any recursive definition there will be two parts. First part is the base part, so this point gives you the base. So base regular expressions आपकी क्या होंगी, ये point आपको ये define करता है. Then it is the recursive step. It is the recursive step. So recursively it will be defining the higher length regular expression. So it says that if R1 and R2 are regular expressions, then following are also the regular expression. What those are? Those regular expressions are R1 in itself. If I bracketize a regular expression, then the result will also be a regular expression. Suppose I am having a regular expression, say A plus B. So this is a regular expression. If I bracketize it, then it is also a regular expression. Why I will be needing bracketization? Okay, I will be needing bracketization if I have to combine this regular expression with some other regular expression. Suppose I want to write the regular expression A plus B asterisk
like this. So because I have to make this regular expression, so that's why I need to bracketize it. क्योंकि asterisk अगर मुझे लगाना है और a और b, a plus b पूरे पर लगाना है, then I have to first bracketize it. Okay. So if R1 is a regular expression, then R1 in brackets will also be a regular expression, and similar is the case with the R2. Okay. So any regular expression, if we bracketize, that will also be a regular expression. Then R1 plus R2 will also be the regular expression. This simply represents the union of two sets. Okay. Though regular expressions ka addition means it represents the union, because each regular expression represents a set. So R1 represents a set, R2 also represents a set. Okay. So R1 plus R2 will be a regular expression that will be representing the union of the sets represented by R1 and R2. Similarly, R1, R2 will be the regular expression. So it is called the union, and it is called the concatenation. Meaning thereby union of two regular expression will also be a regular expression, and concatenation of two regular expressions will also be a regular expression. Like suppose I am having the regular expression a plus b asterisk. If I write a plus b asterisk a, so it is a concatenation of two regular expression. R1 is a plus b asterisk, R2 is a. So it is a concatenation of two regular expressions. So R1 is a regular expression, R2 is a regular expression, and R1, R2, their concatenation is also a regular expression. Similarly, iteration, it is called the iteration or closure. If we have a regular expression R1 and if we take its closure, it will also be a regular expression. Similarly with the R2. Okay. So if we take the closure of any regular expression, it will also be a regular expression. So basically we have discussed three different operations over the regular expression, that is the union, concatenation and closure. So in the absence of parenthesis, अगर parenthesis है तो parenthesis define करेगा हमारी hierarchy को. We have the hierarchy of operations. जैसे कि algebraic fashion में जब हम किसी expression को represent करते हैं algebra में, तो वहाँ भी हमारे पास क्या है, operators होते हैं, operators की hierarchy होती है. Okay, जैसे हम कहते हैं कि asterisk की hierarchy higher है, उससे lower hierarchy किसकी है, plus की है, minus की है. Okay, या हमारे पास exponentiation है तो it is having the highest hierarchy, like this. Okay, so in the similar manner we have the hierarchy of the regular expression. The highest hierarchy is of iteration, the closure. So closure operation has the highest hierarchy. Concatenation operator have the second highest hierarchy, and the union have the last hierarchy. Yes. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, बीच बीच में चली जा रही है सर. ये सभी को ऐसा सुनाई दे रहा है या जो है केवल इनके पास ही आ रही है? जस्ट टेल मी क्लास, someone else tell me, are you getting the voice clear or not? सर क्लियर आ रही है. क्लियर आ रही है तो बेटा इट मे बी ए प्रॉब्लम एट योर एंड. आप किसी ऐसी जगह पे जाकर के बैठिए जहाँ पर थोड़ा आपके सिग्नल मोबाइल के या इंटरनेट के जो है बेटर आ रहे हैं. ओके, so we continue with our discussion. So we have discussed what do we mean by regular expression. We have discussed its formal definition. Okay, and कैसे हमारी जो है simple regular expression से complex regular expression बनेंगी. Only these four ways are there to make the more complex regular expression. One is bracketization, another is union, then concatenation and closure. So these four operators will be used. So nothing else than this will be the regular expression. We will discuss the sets represented by the regular expressions. Again, we assume that if R1 and R2 are two regular expressions, then the sets represented by R1 plus R2, जैसा अभी मैंने पीछे भी बताया था, is the union of the sets represented by R1 and R2. अगर इसको मैथमेटिकली सेट फॉर्मेट में देखें तो बेसिकली R1 plus R2 will represent a set of all words W such that W either belongs to R1 or it belongs to R2. Means W अगर R1 का वर्ड है तो भी वो R1 plus R2 में आएगा, W यदि R2 का वर्ड है तो भी वो R1 plus R2 में आएगा. Is it clear? So it is the set represented by R1 plus R2, that is the union of the sets represented by R1 and R2.
Similarly, if we want to find the set represented by R1, R2, that is the concatenation of two regular expressions. So it is simply the concatenation of the sets represented by R1 and R2. So R1 and R2 will consist of all words of the form W1, W2. Means each word which is part of R1, R2 will be of the form W1, W2. Means there will be two parts in each word. And if we call these two parts as W1, W2, then first part W1 will belong to the R1 and the second part W2 will belong to R2. Is it? So, yani ki R1, R2 will be consisting of all words of the format W1, W2 such that W1 belongs to R1 and W2 belongs to R2. Means एक word हम R1 से ले रहे हैं और उसके पीछे R2 से लिया हुआ कोई word अगर हम concatenate कर देते हैं, then the resultant word will be the part of the language represented by R1, R2. Is it? So this is the set represented by R1, R2. Then simply the set represented by R1 asterisk will be of the form W1, W2, W3 and so on up till Wn. So if I say it as R1 asterisk, so R1 asterisk will be having the words of this form. यानी कि इसका जो वर्ड होगा इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वर्ड्स. ओके, और जो इस कॉम्बिनेशन में जितने भी वर्ड आए हैं, ईच डब्ल्यू आई विल बी बिलोंगिंग टू R1. यानी कि W1 it will also belong to R1, W2 it will also be a word in R1, W3 it will also be a word in R1. मीन्स बेसिकली हम R1 के वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट करके नए वर्ड्स जो बना रहे हैं दैट विल बी इन R1 asterisk. And here the value of n may be greater than or equal to 0. So if the value of n is equal to 0, so epsilon will be there. क्योंकि इसमें कोई भी word R1 से आएगा ही नहीं. Is it? So epsilon will be there. अगर n की value 1 है, so only one word from R1 will come. So each word in R1 will also be a word in R1 asterisk. Suppose the value of n is 2, so the format of the word will be of the form W1, W2, where W1 will also be a word in R1 and W2 will also be a word in R1. Means R1 के एक word को R1 के किसी दूसरे word के साथ concatenate करके हम जितने भी word बना सकते हैं वो सारे के सारे word इस R1 asterisk का part होंगे. Similarly, if the value of n is 3, then the format will be W1, W2, W3. So now we'll be making the words with the combination of 3 words from R1. So all such words जिसमें कि 3 words का combination हो R1 से, वो सारे के सारे words R1 asterisk का part होंगे. So similarly, for any value of n, we can find the words in the R1 asterisk. I hope this point is clear कि how we'll be finding the words represented by the regular expressions. For example, if our AB belongs to sigma, means sigma में कोई से दो symbols हैं, terminal symbols हैं A and B. So simple this symbol symbol A, it will be known as a regular expression, and this regular expression denotes a set of a single word, that is the A only. Is it? Similarly B, because it also belongs to sigma, so it will be a regular expression. So this regular expression denotes the set that is consisting of again a single word, that is the B only. Is it clear, class? Is it clear? Hello class, is it clear? Are you getting my voice? Yes, sir. Okay. Then similarly, if I want to find the set represented by A plus B, okay, so it will denote the set A comma B. So अगर ये क्या है, ये दो regular expression का union है. So this is R1, this is R2. So R1 से यानी कि A से represent होने वाला set क्या है? This. R2 यानी कि B से represent होने वाला set क्या है? This, B. So R1 union R2, आप इस definition से देखिए, it will be consisting of all words W which are either in R1 or in R2. So R1 में A है, R2 में मेरा B है. So R1 plus R2 यानी कि A plus B में क्या होंगे? A भी होगा और B भी होगा. So in this manner I can find this set represented by A plus B. So it's simply the union of the two sets of the corresponding regular expression. So A के corresponding set और B के corresponding set का union will be the result. So this will be the answer. Then similarly,
suppose my regular expression is AB. So it is a concatenation of two regular expression. R1 is A and R2 is B. So it is a concatenation of two regular expressions. So it will also denote the set, which is consisting of the words of the form W1, W2. Is it? W1 किससे आएगा? R1 से, और W2 किससे आएगा? R2 से. R1 मेरा क्या है? A, इसमें वर्ड क्या है? एक ही वर्ड है A. R2 क्या है? B, इसमें एक ही वर्ड है B. सो एक वर्ड इससे आएगा और एक वर्ड इससे आएगा, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके मैं इस ए बी के वर्ड्स बनाऊंगा. सो एक ही वर्ड बन पाएगा, दैट इज ए बी. सो इट इज द सेट रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी. एंड देन सपोज अगर मेरे को ए एस्ट्रिक बनाना हो, क्लोजर, सो अगेन इसमें वर्ड्स किस फॉर्म के होंगे? W1, W2, W3 and so on, Wn where the value of n is greater than or equal to 0. Okay, and each Wi belongs to R1. ओके, यहाँ R1 क्या है मेरा? A. इसका मैं क्या ले रहा हूँ? एस्ट्रिक. इसका ले रहा हूँ क्लोजर. ओके, सो R1 इज A. तो इसमें केवल एक ही वर्ड है A. तो इसी वर्ड के कॉम्बिनेशन से मैं बनाऊंगा. जब इसको मैं एक भी बार नहीं लूंगा तो एप्सिलॉन आएगा. जब मैं इसको एक बार लूंगा तो सिंपल यही वर्ड आ जाएगा A. जब मैं इसको दो बार लूंगा, यानी n की वैल्यू 2 होगी, तो एक वर्ड R1 से, दोबारा फिर एक वर्ड R1 से. R1 में कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं, तो वही वर्ड रिपीट होगा. सो A विल बी द वर्ड इन R1 एस्ट्रिक. Similarly, जब n की वैल्यू 3 है, then I can generate triple A. n की वैल्यू 4 है, then I can generate 4A's and so on. So in this manner, A star will be denoting this particular set. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. In the similar manner, we can represent the set by A plus B asterisk. अब A plus B का asterisk चाहिए, यानी कि यहाँ मेरा R1 क्या है? R1 is A plus B. ओके, या मैं कह देता हूँ R इज A प्लस बी, और R क्या है? R1 प्लस R2 का कॉम्बिनेशन है. ये R1 है. जस्ट सो इट इज R1 एंड इट इज R2. ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस स्टार की जगह 0 ले रहा हूँ तो एप्सिलॉन जनरेट होगा, क्योंकि इसमें से कुछ, इस सेट में से कुछ भी नहीं आएगा. अगर मैं स्टार की जगह 1 ले रहा हूँ, सो या तो R1 का कोई वर्ड ले सकता हूँ या R2 का. सपोज मैंने R1 का वर्ड लिया तो क्या आया? A आया. इसी तरह से अगर मैं R2 का वर्ड लेता तो मेरा क्या आ जाता? B आ जाता. अब इस स्टार की जगह अगर मैं 2 ले रहा हूँ, तो यानी कि मेरे पास दो बार ऑप्शन है कि इस पूरे में से, यानी कि R1 या R2 में से कोई वर्ड ले सकता हूँ. तो R1 R2 में से पहली बार कुछ लिया, सपोज A लिया, अगली बार भी A लिया, तो आई विल बी एबल टू जनरेट AA. इज इट? अब जो है, अगर वापस ये 2 है और पहली बार मैंने A लिया और अगली बार B लिया, तो आई कैन जनरेट AB. इन द सिमिलर मैनर आई कैन जनरेट BA, BB एंड सो ऑन. इज इट? सो दिस इज, इन दिस मैनर वी फाइंड द सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन. और हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर लेंगे. अगर हमें सेट दिया हुआ होगा तो उससे अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड द पैटर्न, और कौन से पैटर्न फिट होंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड, और उसी बेसिस पे हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे या रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे. अगर ये पार्ट क्लियर है, देन वी आर मूविंग टू दी डिजाइन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस. ओके, इसके लिए मैंने आपको आज सुबह ही जो है एक क्वेश्चन बैंक रेगुलर एक्सप्रेशन का भेजा. इससे पहले एक मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजा है, असाइनमेंट 2 विच इज बेस्ड ऑन यूनिट 2, जिसमें से शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन के हैं. जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपने कम से कम देख तो लिए होंगे, उनको आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके टेस्ट के सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही भेज दिया था. तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए. रेगुलर एक्सप्रेशन हम वैसे भी एफए के डिज़ाइन के साथ इन जनरल डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिकली आज डिस्कस कर लेते हैं. सो बट अगर आज डिस्कस नहीं भी करते, इवन देन यू विल बी एबल टू मेक और डिज़ाइन द सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस. ओके, सो आप उन क्वेश्चंस को रेफर करिए, फॉलो करिए. मैं जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है आज सुबह, उसमें से एक एक करके क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ और उनकी रेगुलर एक्सप्रेशंस में जो है आपको लिखता जाऊँगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर. इसके बाद फिर जो है हम जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, और नेक्स्ट टर्न पे आप आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो या तो वो पूछ लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे आप जो है पूछ लीजिएगा. इज इट? तो इस तरह से जो है हम इसको डिस्कस करेंगे. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. अगर आपके पास वो क्वेश्चन बैंक सॉफ्ट कॉपी में हो कहीं पर, आप उसे ओपन कर सकते हो, तो ओपन कर लीजिए, सो दैट आप क्वेश्चन देखते रहें और मैं उसके आपको सॉल्यूशन
डिस्कस करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहला सेट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन 1A. The set given is 1 0 1. So this is a set consisting of a single word, that is 1 0 1. Obviously बात है, इसका जो सिग्मा हम assume कर रहे हैं वो 0,1 है। जहां पर हम सिग्मा assume कर रहे हैं, सिग्मा is 0,1. Okay. So what will be the regular expression corresponding to it? Regular expression corresponding to it, जहां भी single word या finite number of words आए, तो वहां आपको उसको as it is regular expression के फॉर्म में लिखना है। 101, it is a single word, so the same will be the regular expression 101. Okay, so this will be the regular expression. This is the regular expression which is the concatenation of three regular expressions. R1 is 1, R2 is 0 and R3 is again 1. और हमने इसको इस ऑर्डर में R1, R2, R3 के ऑर्डर में कॉन्केटिनेट किया हुआ है। सो इससे जो हमारा वर्ड जनरेट होगा वो 101 जनरेट होगा, एक ही वर्ड जनरेट होगा। सो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज द सिंपल आंसर। नाउ लेट अस टेक द सेकंड वन, A B B A. Here our sigma is A comma P. Okay. Now corresponding to this set, what will be the regular expression? Tell anybody from class. सिंपल है, जैसे ऊपर वाला बनाया है वैसे ही बनेगा ये। Simply what I have to write? Class. Someone. A B B A. Yes, the simple one. A B B A. Simply this we have to write. Now come on the next one, that is C. It is a set 0 1 comma 1 0. Now this is a set which is consisting of two words. So how, what regular expression I should write? अगर मेरे पास केवल 0 1 होता तो मैं क्या लिख सकता था? 0 1 लिख सकता था। केवल 1 0 होता तो क्या लिख सकता था? 1 0 लिख सकता था। बट ये एक नहीं है, दो है। लेकिन एक से एक वर्ड जनरेट हो रहा है, दूसरी से दूसरा वर्ड जनरेट हो रहा है, तो इनके यूनियन से तो हम कर सकते हैं ना। इट इज अ यूनियन ऑफ टू वर्ड्स। ओके, सो इस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी और इस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई कैन गेट द रेगुलर एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेट। सो दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग 0 1 plus 1 0. So this will be the regular expression corresponding to the given set. I hope it is clear. Now on the similar lines, D, it is epsilon comma AB. What should be the regular expression? Class. सर AB स्टार Plus AB. दूसरा किसने Epsilon plus A. Epsilon plus A. एप्सिलॉन प्लस ए बी। यस, जो ए बी स्टार लिखा था, जो भी ए बी स्टार बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे? देखिए, ए बी स्टार, जब भी आप स्टार लेंगे ऑलवेज देयर विल बी इनफाइनाइट मेंबरशिप। ये मैंने आपको उस वक्त इनफॉर्मल डिस्कशन में भी बताया था। तो जब भी हम स्टार लेंगे हमेशा इनफाइनाइट मेंबर्स जनरेट होंगे। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने फाइनाइट, भले ही एप्सिलॉन आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन अपने आप में भी तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से ए बी रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वर्ड ए बी जनरेट हो सकता है, और ये दो वर्ड्स हैं मेरे पास मेरे सेट में। सो जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी बनेगा, एप्सिलॉन प्लस ए बी। इज इट क्लियर? देन वी कम टू दी अनदर वन, ई। चलिए एक और लेते हैं। इट इज ए बी बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी बी ए। दिस इज सेट। सो व्हाट शुड बी द रेगुलर एक्सप्रेशन? Class. What should be the regular expression? What I should write? So चारों का यूनियन। Yes, चारों का यूनियन। Very good. So simply I will be writing ABB plus A plus B plus BBA. So in general, जब भी मेरे पास finite number of elements हैं, जब भी मेरे पास finite number of elements हैं, तो सिंपली उन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, उनका यूनियन कर दूंगा, एंड देन आई विल गेट द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। सो ये इन जनरल इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करिएगा। देन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एफ। एफ में मेरे पास जो एलिमेंट है दैट इज नल, ये नल, एंड देन
single zero, double zero, triple zero, and so on. Is it? So this is the set of words. So what I should write? Zero star. Zero Yes. asterisk. ये तो सिंपल है, जीरो एस्टेरिक सीधा दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन 1 0 2 0. So we are able to find the pattern here. Okay, so that pattern we have found, and that pattern is corresponding to the closure. Okay, then next one is ये भाई किसका माइक ऑन है? अगर आप लोग जो है कुछ इधर उधर बात कर रहे हैं तो अपना माइक ऑफ रखिए. इज इट 1 then 1 1 triple 1 and so on. Suppose ये language है, then what should be the regular expression? Class. One asterisk. Yes, 1 1 asterisk. How we have found it? Because इसमें एप्सिलॉन नहीं है. मैं अगर 1 asterisk लिखता, देखिए 1 का कॉम्बिनेशन है 1 1 2 1 3 1 4 1 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर 0 1 भी होते यानी कि एप्सिलॉन भी होता तब तो सिंपल 1 asterisk लिख देता. बट अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये जो है एप्सिलॉन नहीं है, तो जहां भी एप्सिलॉन नहीं होता वहां मैं हमेशा जो लोएस्ट वर्ड है उस वर्ड को और उसी वर्ड के क्लोजर के साथ इसको लिख लेता हूं. क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं इसको, आई कैन राइट इट समथिंग. अगर मैं सेट को लिखना चाहूं, देखिए दूसरे वे में, सो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस. इट इज 1 concatenation with epsilon 1 1 1 1 1 1 and so on. Is it? अगर मैं इस कॉन्केटिनेशन को इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना. देखिए जब 1 को इसके साथ कॉन्केटिनेट करूंगा एप्सिलॉन के साथ तो 1 आएगा. 1 को सिंगल 1 के साथ कॉन्केटिनेट करूंगा तो डबल 1 आएगा. डबल 1 के साथ कॉन्केटिनेट करूंगा तो ट्रिपल 1 आएगा एंड सो ऑन. यानी कि इस 1 को इसके साथ कॉन्केटिनेट करके मैं सारे के सारे वर्ड्स जो इसके अंदर है वो बना सकता हूं. सो ये 1 तो मेरे पास आ गया कहाँ? यहाँ. और ये मेरे पास क्या है? इट इज सिंपली द 1 asterisk and it is a concatenation of these two. That's why I have written the concatenation of these two. I hope it is clear to everyone. 1 1 asterisk. Now come on the question number 2. Describe the following sets by the regular expression. पहला सेट क्या है? set of all strings of zeros and ones ending with double zero. यानी कि सिग्मा क्या है? 0 1. And I want all the words ending with double zero. I want all the words ending with double zero. Okay. So what I should write? Class. Sir, 0 plus 1 asterisk 0 0. 0 plus 1 asterisk 0 0. Clear to everyone? So this is the correct answer. Then come on B. Set of all strings of zeros and ones beginning with 0 and ending with 1. यानी कि begin with 0 and end with 1. What I should write? 0 plus Sir, 1 0 plus 1 है 1. 0 plus 1 asterisk and 1. Yes, very correct. 1. Then C. C is L is equal to null 1 1 and so on. This is the language. What I should write? Sir, 1 1 asterisk 1 1 asterisk. its whole asterisk. Okay. 1 asterisk is 1 asterisk is somewhat different. It is somewhat different. So it is not correct. It is 1 1 whole asterisk. Is it clear? Okay. क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हमने इसको कैसे देखा? पैटर्न देखा. हमारे पास null आया, फिर हमारे पास 2 ones आए, फिर 4 ones आए, फिर 6 ones आए. यानी हर दो के बीच में हमारे पास डबल 1 का डिफरेंस है. So that's why it is double 1 asterisk. So जब asterisk की वैल्यू 0 होगी तो एप्सिलॉन आ जाएगा null. जब 1 होगी तो डबल 1. जब 2 होगी तो फिर 4 ones. जब 3 होगी तो 6 ones and so on. Is it? So this is question number 2. Now come on the question number 3.
question number 3. Its A part. Its A part says set of all strings containing, अब इसमें सबसे पहले sigma is A comma B. Okay, first part is set of all strings containing exactly 2 A's. So exactly 2 A's. Set of all strings which contains exactly contains exactly 2 A's. Okay. So आपके स्ट्रिंग किस पे बनेंगे? ए बी पे बनेंगे, बट उसमें एग्जैक्टली 2 ए होने चाहिए. व्हाट आई शुड राइट? ए. अगर एग्जैक्टली 2 एज होते तो मेरा वर्ड क्या बनता? ए. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एज. तो जैसे मेरा एक वर्ड है बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक. यस, बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक. इज इट? अब अगर मेरा वर्ड सपोज बी ए है तो क्या इससे रिप्रेजेंट हो सकता है? दिस वर्ड can be represented by this or not? It will be a word over A and B containing exactly 2 A's. Can it be represented by this or not? No sir. No sir. So क्या चेंज करना पड़ेगा? बी एस्ट्रिक लाना है सर बीच में. बीच में एक बी एस्ट्रिक और लाना पड़ेगा. Is it clear है? So this will be the regular expression corresponding to this. Simple concept क्या है कि मेरे पास 2 A तो चाहिए, 2 A मैंने लिख लिए. अब 2 A के बाद मेरे पास 3 पोजीशन खाली बचती हैं. एक तो ये दोनों एज से पहले, एक दोनों एज के बीच में और एक दोनों एज के बाद. इन पोजीशंस पे मैं कुछ फिल कर सकता हूँ. क्या फिल कर सकता हूँ? ए तो नहीं आ सकते. ए नहीं आ सकते तो क्या बचा? बी आने पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. तो बीज आ सकते हैं. कितने बीज आ सकते हैं? एनी नंबर ऑफ बीज. हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो. इज इट? सो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी एस्ट्रिक. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बी एस्ट्रिक in these 3 positions which I can fill in between the A's. Is it? So this is the correct regular expression. I hope it is clear to everyone. Now come on the next. Set of all strings of zeros and ones. Set of all strings containing at least 2 A's. So containing at least 2 A's. Containing at least 2 A's. Containing at least 2 A's. कम से कम 2 A चाहिए. क्या लिखूंगा? क्लास ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक. यस, वेरी गुड. ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक ए और ए प्लस बी एस्ट्रिक. इज इट? सो दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन. ये करेक्ट कैसे है? वापस देखिए, मुझे क्या चाहिए थे? 2 ए चाहिए थे. तो 2 ए तो मैंने लिख लिए. एटलीस्ट 2 ए चाहिए, यानी कि इन 2 ए के अलावा भी ए आ सकते हैं. तो 2 ए लिख लिया. अब इन 2 ए लिखने के बाद मेरे पास वही 3 पोजीशन बची. इन 3 पोजीशंस में मैं क्या फिल कर सकता हूं? कुछ भी फिल कर सकता हूं, चाहे ए आए चाहे बी आए, चाहे कितनी भी बार आए, क्योंकि एटलीस्ट 2 एज है. अगर और एज भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स वाई ए और बी का कोई भी स्ट्रिंग आ जाए तो वो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? नहीं, कुछ भी आ जाए उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? ए प्लस बी एस्ट्रिक से. सो दैट्स वाई तीनों ही पोजीशन में मैंने क्या किया? ए प्लस बी एस्ट्रिक फिल कर दिया. तो इससे मैं सारे वो वर्ड्स बना पाऊंगा जिसमें कम से कम 2 ए आते हैं. इज इट क्लियर? देन कम ऑन दी थर्ड वन, दैट इज सी. Set of all strings containing at most A. Contains at most 2 A's. Contain at most 2 A's. यानी ज्यादा से ज्यादा 2 A आए. ज्यादा से ज्यादा 2 A आए. Class, what I should write? Design and tell me. सर बी एस्ट्रिक ए प्लस ए और बी एस्ट्रिक. बी एस्ट्रिक
फिर ब्रैकेट में A प्लस डबल ए, A प्लस डबल ए और फिर B एस्ट्रिक और B एस्ट्रिक। ये करेक्ट होगा क्या? नो सर। इसमें क्या गलती होगी? गलत क्यों होगा? सर जवाब बी ए नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। बी ए ये वर्ड इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। जस्ट चेक करिए क्या बी ए हम इससे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इज इट क्लियर है? तो यानी कि ये वर्ड इसमें दो ए हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्ड इससे जनरेट नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। अब देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं कह रहा हूँ एटमोस्ट टू एज। एटमोस्ट टू एज का मतलब ये मुझे तीन सिचुएशंस दे रहा है, या तो नो ए, ठीक है, कोई ए है ही नहीं उसके अंदर, या फिर वन ए, ठीक है, दूसरी सिचुएशन, या फिर तीसरी सिचुएशन क्या है? टू ए। यानी कि या तो उसमें कोई ए ना हो, या केवल एक ए हो, या केवल दो ए हो। ये तीन सिचुएशन तो बनेगी। अगर कोई ए नहीं है तो स्ट्रिंग में क्या होगा? केवल बीज होंगे। इज इट और नॉट? सो केवल बीज का स्ट्रिंग को मैं क्या लिखूंगा? जस्ट टेल मी क्लास, केवल बीज के स्ट्रिंग को मैं क्या बी लिखूंगा? एस्ट्रिक। सो बी एस्ट्रिक। केवल एक ए है तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा? अब देखिए एक है तो एक ए तो मैंने लिख लिया, एक ए के इस साइड एक पोजीशन है, इस साइड एक पोजीशन है, वहां क्या आ सकता है? बीस तो आ सकते हैं ना? इज इट? बी एस्ट्रिक। सो आई विल बी राइटिंग बी एस्ट्रिक, बी एस्ट्रिक। इज इट? तो ये हो गया वन ए के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली टू ए तो आप ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं ना, थ्री का ए, थ्री का ए, ये वाला पोर्शन देखिए। इज इट? ये क्या है? कंटेन्स एग्जैक्टली टू एज। यहां भी तो मेरा यही है, एग्जैक्टली टू ए चाहिए मेरे को। तो क्या है मेरी एक्सप्रेशन? बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक। इज इट? सो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो अगर कोई ए नहीं है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक ए है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, और दो ए हैं तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। और मुझे क्या चाहिए? इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो तो मेरा एटमोस्ट टू एज वाली सिचुएशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी? तो मैं क्या करूंगा? तीनों का यूनियन। सो माई एक्सप्रेशन विल बी बी एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक। Is it? So this will be the correct regular expression. Is it okay, class? Understood? Yes. Or not? Okay. So now we are moving to the next one, that is third D. Third D. It says set of all strings containing the substring double A. So contains substring डबल ए। क्या लिखूंगा इसके लिए? सिंपल है, तो बताइए। उस वर्ड में कहीं डबल ए आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस बी एस्ट्रिक डबल ए प्लस बी एस्ट्रिक। इज इट क्लियर? So this will be the regular expression. Now come on, question number 4. Question number 4 says, okay, question number 4 I am leaving as home exercise. आप इसको घर पे अपने आप करिए, ठीक है? अगर नहीं होगा तो इसको मुझे बताइएगा। Question 5. Question 5 पे क्या है? हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या दी हुई है? इस तरह से दी हुई है कि it contains words of the form a to the power m, b to the power n, c to the power p, where m, n or p, these are greater than or equal to 1. So my sigma is what? Consisting of three symbols a, b and c, जिस पे मेरे words बनेंगे, and my L is of the form a to the power b, c to the power p,
or a to the power m, b to the power n, and c to the power p, where m, n, and p are greater than or equal to 1. So what regular expression I should write? A asterisk, B asterisk, C asterisk. Yes, A asterisk, B asterisk, C asterisk. Why we have written this? We have written this because form क्या है? A to the power m. The value of m is greater than or equal to 1. यानी कि कम से कम एक तो रहेगी, m की वैल्यू 1 तो होगी, यानी कम से कम एक a तो जरूर आएगा. So that's why I have written 1a. उसके बाद क्योंकि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, भी हो सकती है. अगर ग्रेटर देन 1 है तो और a's आएंगे. कितने आएंगे पता नहीं कितने आएंगे. So that's why I have written a asterisk. Any unknown number of a's means a asterisk. So क्योंकि a asterisk से मैं हो सकता है कोई भी a ना हो सकता है एक सिंगल a हो, 2a's, 3a's, 4a's, anything I can generate. So that's why it is a asterisk. In the similar manner, if b to the power n I have to represent, then b asterisk I have represented, because n is also having the value n greater than equal to 1. In the similar manner for c, so that's why c asterisk. Okay. Then next part is again of the same form, a to the power m, b to the power 2n, and c to the power 3p, such that m where m, n, p is greater than or equal to 1. Okay. If L is this, then yes, class. A asterisk, B asterisk, C asterisk. B Asterisk, double B, sir, B asterisk, and double B, asterisk, triple C, and triple C asterisk. यहाँ पे इन दोनों पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों पैरेंथेसिस हैं, बाकी सारे C हैं. Is it? जिनके नीचे मैंने लाइन खींची है मेरे पैरेंथेसिस हैं, और बाकी तीनों मेरे क्या हैं? C हैं. Is it? तो आप देखिए कैसे है. A की पावर m वाला तो क्लियर है, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो जैसे a एस्ट्रिक लिख दिया. लेकिन अब यहाँ b टू दी पावर 2n था, तो जैसे ही n की वैल्यू 1 होगी तो कम से कम 2b जरूर आएंगे. n की वैल्यू 1 होते ही b2, 2b आएंगे. अब अगर n की वैल्यू नेक्स्ट यानी कि 2 हो तो कितने आएंगे? n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4b आएंगे. यानी कि 2b के बाद अगला जो पॉसिबिलिटी है वो 4b के, 3b के ही नहीं आ सकते. इसी तरह से अगली जो पॉसिबिलिटी है वो 6b की है, उससे कम नहीं आ सकते. यानी दो के क्लम्सेस में मेरे को इंक्रीज करना. सो दैट्स व्हाई मैंने डबल b एस्ट्रिक लिखा है. इज इट? सिमिलर सिचुएशन विद c टू द पावर 3p, क्योंकि p की वैल्यू 1 है तो 3c आएंगे. सो दैट्स व्हाई मैंने 3c लिखे हैं यहाँ. ठीक है. उसके बाद अगर p की वैल्यू 2 हो जाती है तो मेरे c कितने हो जाएंगे? सीधे 3 से 6 हो जाएंगे. p की वैल्यू 2 रखते ही c टू द पावर 6, सो c 6 हो जाएंगे. अगली वैल्यू आती ही 9 हो जाएंगे. 3 के फॉर्म में मेरे जो है c बढ़ रहे हैं. So that's why triple C का asterisk मैंने यहाँ मार्क किया. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. Then next one is a to the power n, b to the power 2m, and sorry, just 1 minute. मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, दोबारा लिख लेते हैं इसको. a टू द पावर n b, a टू द पावर n b, a टू द पावर 2m, a to the power 2m b2, such that m greater than equal to 0 and n greater than equal to 1. So this is L. Okay. यहाँ ये क्या कह रहे हैं? फॉर्मेट ये है, यानी कि कुछ a आते हैं, फिर एक b आता है, फिर कुछ a आते हैं और फिर 2 b आते हैं. इज इट? सो ये जो b है ये तो फिक्स्ड है, केवल a's का नंबर वेरिएबल है. इट डिपेंड्स ऑन n एंड m. n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. m की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो व्हाट आई शुड राइट हियर? A asterisk, B A का whole asterisk, B B. A asterisk and then B. उसके बाद डबल A का asterisk, डबल A का asterisk, डबल B. उसके बाद डबल B.
So everybody agrees that it is correct, क्योंकि देखिए a की पावर n greater than equal to 1, so that's why a स्टार आ गया, तो क्लियर हो गया होगा. एक b सिंगल आना था, so एक b सिंगल आ गया. उसके बाद a टू दी पावर 2m है, लेकिन यहाँ m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 0. तो m की वैल्यू 0 होगी तो नहीं क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, कुछ नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा. सो एप्सिलॉन, अगर m की वैल्यू 1 होगी तब डबल a आएगा, m की वैल्यू 2 होगी फिर 4 a's आएंगे एंड सो ऑन. डबल a के जो है डिफरेंस के साथ आएंगे, लेकिन सबसे लोएस्ट वर्ड क्या है, एप्सिलॉन. सो दैट्स व्हाई इट इज डबल a एस्ट्रिक मेरे पास, यानी कि इसके थ्रू क्या जनरेट होगा, इसके थ्रू मेरे वर्ड जनरेट होंगे या तो एप्सिलॉन या फिर डबल a या फिर 4 a's एंड सो ऑन, इज इट, इसके थ्रू. सो दैट्स व्हाई इसके लिए मुझे क्या लिखना है, डबल a एस्ट्रिक. और उसके बाद क्या है, मेरे पास 2 b's हैं, तो 2 b's मैंने लिख दिए. सो इन दिस मैनर आई विल बी राइटिंग इट. सिंपली यू हैव टू लुक एट द पैटर्न एंड यू हैव टू राइट इट. लास्ट वन, that is L is equal to a to the power m, b to the power n, c to the power p, such that m n p greater than equal to 0. What I have to write for it? A asterisk, B asterisk, C asterisk. Yes, very good. A asterisk, B asterisk, C asterisk. Okay. So this is the regular expression corresponding to it. Okay. So in this manner, today's lecture I will be closing here. Some initial practice of the regular expressions we have done. Okay. Now you do the questions given in the question bank, which I had uploaded on Teams today. Okay. और इसमें जो भी आपकी difficulties या problems हैं, आई विल विश कि आप वो मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ लें, तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर कर दूंगा और डिस्कशन कर लेंगे. या फिर आप अपने क्वेश्चंस करके रखें, तो कल का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ पुट करिएगा, तो मैं जो है उन डिफ़िकल्टीज़ को जो है कल के लेक्चर में रिमूव कर दूंगा. ओके. सो कल का लेक्चर और हम इस पर डेडिकेट करेंगे. इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी Arden's theorem. Arden's theorem is a theorem which gives you a method to convert any given FA to the corresponding regular expression. अभी हमने पिछले कुछ टर्म्स पे एक वो डिस्कस किया था, क्लीन्स थ्योरम. ओके. क्लीन्स थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम उसके corresponding DFA बना सकते हैं. कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन एन एफ ए से उसको DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट? तो यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से बेसिकली DFA बना सकते हैं. अब अगर हमारे पास एक मेथड ऐसा भी होगी जिससे हम DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकें, तो हमारा दोनों कन्वर्जन एक दूसरे में हो जाते हैं. यानी कि हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं दैट आवर रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड FAs आर इक्वलेंट. यानी कि जो लैंग्वेज, जो सेट रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होते हैं, वही सेट हम जो है FAs की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. FA की हेल्प से उन्हीं सेट्स को केवल हम टेस्ट कर सकते हैं. So, यानी कि FAs एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्वलेंट टू ईच अदर. ये हमने क्लेम किया था पहले भी, बट थ्रू दीज टू थ्योरम्स, क्लीन्स थ्योरम एंड आर्डन्स थ्योरम, वी कैन प्रूव इट. ओके. सो दिस विल बी टेकिंग ऑन फर्दर lectures. So I am closing at this point. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the class and go for the next class. Any doubt? Sir. Yes. सर 6 क्वेश्चन में क्या करना है जिसमें गिवन है क्वेश्चन बैंक में? क्वेश्चन बैंक में ये सॉल्व करना है. इसमें आपको फाइंड द सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस. इसमें क्या है, उल्टा करना है. अभी आपको क्या दिए हुए थे, रेगुलर आपको जो है सेट्स दिए हुए थे और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी. यहाँ आपको क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिए. नाउ यू हैव टू एनालाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू राइट द सेट. जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 का A. ओके. चलिए एक एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं 6 का A. Just 1 minute. Question 6A. Your given regular expression is double A plus AB plus BA plus BB, its whole asterisk. Now you have to tell us the set. I am writing the set. All words या all strings over sigma is equal to A comma B having
even length. Just check it is correct or not. पहले अपने आप एग्जामिन करिए करेक्ट है कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। करेक्ट है कि नहीं क्लास? यस सर। ओके, ये आया कैसे? आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, ए बी, बी ए और बी बी, यानी ए और बी के ऊपर टू लेंथ के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे वर्ड्स इसके अंदर हैं। इज इट? और उसका क्या ले रहा हूं मैं? यूनियन, क्लोजर। यानी कि मेरे जो कोई भी वर्ड बनेगा वो इन सारे कॉम्बिनेशंस की हेल्प से बनेगा, ठीक है? और उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी? या तो 2 होगी, अगर स्टार की वैल्यू 2 है तो 4 होगी, स्टार की वैल्यू 3 है तो 6 होगी, स्टार की वैल्यू 4 है तो 8 होगी, एंड सो ऑन। यानी कि जब भी होगी इवन होगी। और इवन लेंथ के सारे क्यों आएंगे? क्योंकि टू लेंथ के सारे वर्ड्स इसका पार्ट है। इज इट? जैसे इट इज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं लिखता था ए प्लस बी एस्ट्रिक, और मैं इसको कहता था कि ए और बी पे बनने वाले सारे के सारे वर्ड्स, क्योंकि ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है, तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से मैं जो कुछ भी बना सकता हूं वो सब इसके अंदर आएगा, इस क्लोजर के अंदर। यहां मेरे पास क्या है? या इस क्लोजर के अंदर मेरे पास क्या है? डबल ए डबल बी, यानी कि सारे वर्ड्स जो ए और बी पे बन सकते हैं और जिनकी लेंथ 2 है वो सारे के सारे वर्ड्स हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से मैं क्या बना सकता हूँ? सारे वर्ड्स जो कि इवन लेंथ के हैं वो बना सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस regular expression represents all the words or all the strings over sigma is equal to a comma b having even length. Is it clear or not, class? Yes, sir. Now you can tell me the answer for 6b. 6b is simply a plus b double a plus ab plus ba plus double b, it's asterisk. So what is the set represented by this regular expression? Having odd length. Yes, all words having odd length. Odd, having odd length. Is it clear? Okay. So इसी तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस में रेगुलर एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग सेट आपको बताने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में है वैसे दोनों तरह से आ सकता है, कि आपको लैंग्वेज दी हो, आपको उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन दी हो, उसकी लैंग्वेज आपको बतानी है। नॉर्मली पहले टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बट कई बार सेकंड टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं कि उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी और लैंग्वेज पूछी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशन देख करके लैंग्वेज एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन ये आपका आसान हो जाएगा अगर आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने की प्रैक्टिस अच्छी है। इज इट? तो इसको आप जो है करिए, और जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, एनी अदर डाउट? No, sir. Okay, so I am closing at this point. Now you can leave the class.